सो गाइस ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव 100 पे। तो आज बात करने वाला हूँ मैं असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 नेशनल हाउसिंग बैंक का जो रिक्रूटमेंट आया था 2020 का, उसका रिटन एग्ज़ाम। अब रिटन एग्ज़ाम जो 18 अक्टूबर को कंडक्ट हुआ था, द रिजल्ट फॉर द रिटन एग्जामिनेशन इज़ डिक्लेयर्ड ऑन 21st of November, 3 days before, and a total of 164 candidates has been selected out for a total of 16 seats, 16 vacancies. Okay, so friends, today I'm going to give you some best interview tips, which will be very important for all of you who are going to appear for interview in this interview exam. Okay, friends. So this interview will also be very important to the candidates who are going to be eligible for giving interview in SBI PO, IPS PO, RRB PO, or any of the interview exams of any government exam. Okay, friends. So let's start the video. So before starting the video, let me speak something about about me, that I have also appeared in three interviews last year. As I Okay, so those interviews were IDBI PO, RRB PO, RRB PO, and IPS PO. Okay, friends. So all these three interviews I have given last year, and fortunately I have been selected in all three of the jobs. सो सिंस मैंने भी इंटरव्यू एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन टिप दे सकता हूँ कि मैंने किस तरह अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। आरआरबी पीओ में मेरे मार्क्स उतने बेटर नहीं थे, बट डेफिनेटली बाकी जो इंटरव्यू दिए थे उसमें मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आए हुए थे। और मैं उसके लिए बताने वाला हूँ कि किस तरह आप प्रिपेयर कर सकते हैं एनएचबी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट से आप उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में जानें और क्या क्या तरीके हमने अपनाए थे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है और आपके पास बस एक स्टेज दूर है आप अपने फाइनल सिलेक्शन से। तो हम उस बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो टोटल ऑफ 164 कैंडिडेट्स हैड बीन सिलेक्टेड। ओके, एंड टोटल सीट्स आर 16 सीट्स, जस्ट 16 सीट्स। तो जो इंटरव्यू जो कंडक्ट अभी डेट आई नहीं है फिलहाल इंटरव्यू की, तो प्रोबेबली इंटरव्यू जो होने वाला है वो जनवरी या फरवरी में कंडक्ट हो जाएगा। Most probably I would say that in January the interview will be conducted and the final result would be declared by the end of February or March. So I think they are not going to delay much for the dates. So you have to start preparing from now on, from today only. You cannot delay this time anymore, because a lot of candidates in my group, telegram group, that is study live 100, has been have been asking me to upload interview session for this, that how to prepare for national housing bank assistant manager scale 1 interview. So for all of you I have brought this video. So let's start the video. So first let's discuss about the contents that I am going to discuss inside. So the first point is final selection criteria, criteria. Second thing, important things before interview. After that we will see about what is interview, importance of interview, personal and technical questions that might be asked in in your interview session. Also I will tell you some of the important key aspects or key points to crack the interview, because you cannot be lenient to this interview thing, because this is the last phase you are going to be appear for getting selection. And at last I will talk about the NHB questions, that what can be the important things you need to know about NHB, that is National Housing Bank. Okay friends, so let's start the video. सो कैंडिडेट्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बिकॉज मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ इंटरव्यू को लेके, और एक एक चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा कि किस बात का क्या मतलब होता है। बिकॉज मैंने जो PDF बनाया है आप सबके लिए बहुत सोच समझ के बनाया है, बिकॉज मैं भी खुद भी ऑफिस में हूँ, और क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, मैं खुद भी EPFO में एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर काम कर रहा हूँ, तो आई नो कि कितना बिजी शेड्यूल रहता है मेरा। फिर भी मैंने आप सबके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लाया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं स्टार्ट से एंड तक। तो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया. What is the criteria? Written exam has been conducted, and the weightage for the written examination is 80% and the interview is 20%. So 20% is very is a lot of weightage. So you cannot ignore your interview. अगर आपका रिटन एग्जाम अच्छा नहीं भी गया अब तक, या मान लेते हैं कि जिन भी कैंडिडेट्स का रिटन एग्जामिनेशन में दे आर थिंकिंग दैट दे आर गोइंग टू स्कोर लेस, देन दे डिड नॉट वरी अबाउट द written exam anymore. They should start preparing for interview, and if they prepare interview on a very good note, they can guarantee their selection. Okay friends. So this is the last year's interview.
that has happened on in the National Housing Bank head office, that is in the Lodi Road. Okay, friends. So there were two interview sessions. One was before afternoon, that is forenoon at 8:45 a.m. reporting time, and the second was afternoon, that is 12:30 p.m. सो आप सबका भी ऐसा ही कुछ होने वाला है कि 2 सेशंस में प्रोबेबली आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा, बिकॉज लास्ट ईयर भी अराउंड 160 कैंडिडेट्स का ही सिलेक्शन हुआ, मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, तो आप सबको भी इतने के लिए ही बुलाया जाएगा. अब देखते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स बिफोर इंटरव्यू. So this video will be mixture of Hindi and English, because a lot of candidates must be from South Indian states as well, or Western states. So I will talk in Hindi or in English, both the language. Okay, friends. So let's talk about important points that you need to keep in mind before appearing in the interview. तो फर्स्ट थिंग इज़ इंटरव्यू कॉल लेटर. आप सब इंटरव्यू कॉल लेटर ले जाना ना भूलें. ध्यान रखें, जो भी इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा वो आपको साथ में कैरी करना है. ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे और उन सब का प्रिंट आउट, ध्यान रखें उन सब का जीरोक्स. आपके पास 4 कॉपी या 3 कॉपीज़ हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का रहना चाहिए, और प्रॉपर एक फॉर्मेट में होना चाहिए. जो भी प्रॉपर फॉर्मेट इन लोगों ने दिया था नोटिफिकेशन में, वैसा ही एग्जैक्टली होना चाहिए. कोई भी आप नेग्लिजेंसी ना करें, बिकॉज ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ख़राब हो सकता है. सो बी ऑन टाइम. इसका मतलब ये होता है कि आप एग्ज़ाम जब इंटरव्यू होगा, लेट्स सपोज 8:45 में आपका इंटरव्यू है, यू आर हैविंग इंटरव्यू ऑन 8:45 o'clock इन द मॉर्निंग. सो आई वुड से दैट विजिट द ऑफिस बाय 7:30. 1 घंटे पहले पहुंच जाए, बिकॉज वहाँ पे जाके बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है जो आपको फॉलो करना पड़ सकता है, तो इस चीज़ को नेग्लेक्ट ना करें. देन वेल फॉर्मली ड्रेस्ड. आपको जो ड्रेसिंग होनी चाहिए, आपको फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए. जो बॉयज़ होंगे, जब मेल्स होंगे, और प्रॉपर शर्ट होना चाहिए, जो उनका पैंट होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए. ट्राई टू नॉट वियर ब्राइट क्लोथ्स. ट्राई टू वियर सिंपल क्लोथ्स. जो सिंपल कलर्स होते हैं वो पहनने की कोशिश करें. जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ध्यान रखें वो जो उनका ड्रेसिंग हो वो प्रॉपर इंटरव्यू के टाइप का होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कहीं वो घूमने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. प्रॉपर शूज़ होना चाहिए, और जो भी आपका अटायर होना चाहिए वो प्रॉपर एक फॉर्मल टाइप का होना चाहिए. सो इंटरव्यू स्टार्ट होने के पहले ध्यान रखें, बिकॉज इंटरव्यू में जो भी पैनल्स होंगे वो बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं और बहुत ही कंसिडरेट होते हैं. मतलब आपको ऐसा नहीं कि वो आपको डिमीन करना चाहते हैं. सो ए लॉट ऑफ क्रॉस क्वेश्चनिंग्स मे बी डन टू यू. सो उसके लिए आप पैनिक नहीं करेंगे. इंटरव्यू होने के पहले आई वुड से दैट बी रिलैक्स, डोंट पैनिक. कोई नर्वस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए. आपको कॉन्फिडेंट फील करें आप कि आपको ये फील होना चाहिए कि आप बस एक स्टेज से दूर हैं, तो आप ज़्यादा ओवर एक्साइटेड भी ना रहें और बहुत ज़्यादा डरे हुए भी ना रहें, ठीक है दोस्तों. तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको कॉन्फिडेंट फील करना है. लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, बिकॉज ए लॉट ऑफ कैंडिडेट्स मस्ट बी फ्रॉम बिहार और झारखंड, जो कि मतलब ऐसा नहीं कि बिहार के कैंडिडेट्स इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, बट जो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बोलें. कंपलसरी नहीं होता इंग्लिश लैंग्वेज, कहीं भी लिखा हुआ नहीं कि इट्स कंपलसरी. यू कैन गो फॉर हिंदी लैंग्वेज एज वेल, बट आई वुड से कि स्टार्ट आप करें इंग्लिश लैंग्वेज के साथ. अगर वो आपसे पूछते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, नो व्हेन दे स्पीक इन इंग्लिश, देन आई वुड से दैट यू कैन स्टार्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश एज वेल और हिंदी एज वेल. बट जब मान ली वो हिंदी में पूछते हैं, तो आई वुड से कि हिंदी में बोल सकते हैं आप. ऐसा नहीं कि हिंदी पूछे तो आपको इंग्लिश में जवाब देना है. यू कैन गो इन हिंदी एज वेल. ओके, सो नो लैंग्वेज बैरियर. सो व्हाट इज़ इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कि ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा. तो लेट्स नो व्हाट इज़ इंटरव्यू. इंटरव्यू इज़ नॉट योर it's not the test of your knowledge, that how much you know, because that knowledge has already been checked in your examination, but definitely रिटन एग्जामिनेशन. बट डेफिनेटली आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हर चीज़ का जो आप जानते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ध्यान रखिए, क्लैरिटी अबाउट द थिंग्स यू नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ जस्ट नॉट द पर्सनैलिटी टेस्ट. पर्सनैलिटी टेस्ट तो होगा ही आपको, क्योंकि आपको देखा जाएगा कि आप कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप जो बोलते हैं वो कितना क्लियर है आपको उस चीज़ के बारे में. द सेकंड पॉइंट इज द सेम थिंग, चेक योर कॉन्फिडेंस एंड कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग थिंग्स यू स्पीक. जो आप बोलते हैं दे विल चेक द कॉन्फिडेंस एंड द कॉन्सेप्ट यू आर हैविंग, कि आप जो बोल रहे हैं आपको कितना नॉलेज है. बस आप हवा में तो नहीं बोल रहे हैं, या बस बोलने के लिए कुछ तो नहीं बोल रहे हैं. तो जो आप बोलें, आप ध्यान से बोलें कि आप जो जितना पॉइंट बोल रहे हैं दैट शुड बी वेरी स्पेसिफिक. फालतू की बातें ना करें. ऑल्सो इफ़ यू कैन बी एप्ट एम्प्लॉय फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब कि वो आपको ये चेक करते हैं कि आप उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना एप्ट बैठने वाले हैं. अगर वो आपको सेलेक्ट करेंगे तो इफ़ यू आर गोइंग टू बी द राइट पर्सन फॉर देम और नॉट. सो आई वुड से कि आप अपने आप को एक प्रॉपर जो आप हैं आप उसको ही रिप्रेजेंट करें. ऑल्सो दे विल
दे विल चेक अबाउट योर थिंकिंग एबिलिटी एंड द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन का मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको। थिंकिंग एबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी सोचने की क्षमता जो है वो कितनी अच्छी है। आप जो बोलते हैं, आप क्या आप सोच समझ के बोल पा रहे हैं, या ये ऐसा तो नहीं आपको कुछ पूछा और आपने इंस्टेंटली आंसर कर दिया। एब्रप्टली आंसर नहीं करना है। नो, थिंक बिफोर आंसरिंग। बट ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लें बोलने के पहले। नो, जस्ट टेक ए पॉज एंड स्टार्ट आंसरिंग दैट व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक फॉर द क्वेश्चंस। So, I have already discussed this. Not just you are full of knowledge but can't represent it. जो आपको आता है उसको बोलना भी आना चाहिए. How to speak the things you know. Speaking just good things about the organization won't help your selection. जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन के सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं, लेट्स सपोज आप NHB के लिए जा रहे हैं, SBI PO के लिए जा रहे हैं, या किसी भी IPS के किसी बैंक के लिए एग्जाम के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो उसके बारे में अच्छा ही नहीं बोलना। आपको ऑनेस्ट रहना है। एज आई सेड, बी ऑनेस्ट, बी रियल, स्टॉप प्रिटेंडिंग। आपको दिखावा नहीं करना है। नो नीड टू प्रिटेंड, जस्ट बी द रियल यू। ओके फ्रेंड्स, यू कैन बी रॉन्ग इन आंसर बट नथिंग टू अफ्रेड ऑफ। आपको कोई क्वेश्चन मान लिया पूछ जाएगा, तो आप डायरेक्टली कहेंगे दैट, मान लेते हैं आपको नहीं आता है, यू डोंट नो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, तो यू वुड से आई डोंट नो सर, आई डोंट नो सर, आई डोंट नो मैम। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसा कुछ भी आप गलती नहीं करेंगे। ध्यान रखें इन चीज़ों का कि आपको ये नहीं करना कि मान लीजिए कुछ पूछ दिया आपको NHB के बारे में और आपको पता नहीं है, तो आप कुछ भी तुक्का लगाए जा रहे हैं कि मुझे सर आता था बट मैं अभी बोल नहीं सकता, ये वो, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे सर आई डोंट नो एज ऑफ नाउ, इतना बोलेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंटरव्यू अभी? बिकॉज इंटरव्यू का जो वेटेज होने वाला है 20% होने वाला है। 20% इज नॉट लो वेटेज, इट्स गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑफ यू। इट्स नॉट ए स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस लाइक रिटन एग्जामिनेशन। जो रिटन एग्जामिनेशन आपके पास प्रॉपर सिलेबस था, बट यहाँ पे आपके पास कोई सिलेबस नहीं है। इट्स एन इंडेफिनिट रेंज ऑफ क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड टू यू। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। आप जो बोलेंगे आपको बस कॉन्फिडेंट साउंड करना है। यू हैव द कैपेबिलिटीज़ टू ड्राइव द इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू स्किल्स। तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ध्यान रखें उनका आंसर्स कुछ इस तरह दें जो कि आप, जैसे कि मान लिया मुझसे पूछ लिया कि व्हाट इज़ योर हॉबी, देन मैं कहूँगा क्रिकेट, बिकॉज मुझे क्रिकेट के बारे में नॉलेज है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा जिससे मेरी हॉबी, गार्डनिंग भी मेरी हॉबी है, बट आई वोंट से कि गार्डनिंग इज़ माई हॉबी, बिकॉज गार्डनिंग में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मुझे अच्छा लगता है गार्डनिंग करना, बट उसके बारे में मुझे डेप्थ में नॉलेज नहीं पता है। तो आप उन्हीं आंसर्स को दें जिसके बारे में आपको प्रॉपर एक नॉलेज होता है, ताकि उस पर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर कर दें। तो ध्यान रखें इस चीज़ का कि ऐसा कोई आंसर ना दें जिसके बारे में आप जब कि बस ऊपर ऊपर से आंसर दे दिया, बिकॉज अगर वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो ध्यान रखें इस चीज़ का कि आप ऐसा कोई आंसर नहीं देंगे। क्वेश्चन विल बी डिफरेंट टू ईच कैंडिडेट एक्सेप्ट टू पर्सनल क्वेश्चंस। जो पर्सनल क्वेश्चंस के अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भी कैंडिडेट से, तो वो अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन सारे कैंडिडेट से पूछा जाएगा। तो ध्यान रखें कि जो कैंडिडेट आपके पहले वाला होने वाला है, वो जो क्वेश्चन पूछेगा वही आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं पर्सनल क्वेश्चंस इन इंटरव्यू। So the personal questions that might be asked in the interview, not might be, but definitely they will ask you the personal questions. So what kind of questions that can be? Introduction. They will start about, they will say start in, say something about you, or introduce yourself. तो आप क्या क्या बताएंगे? आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उतना ही बताएंगे तो काफ़ी होगा, सफिशिएंट होगा। बिकॉज ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि, बिकॉज जो इंटरव्यू होता है वो 15 मिनट्स तक जाता है, और नॉर्मली 25, जब कैंडिडेट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं उनको, तो वो 25 मिनट्स तक भी जा सकते हैं, बट मिनिमम 10 to 15 मिनट्स का इंटरव्यू होना ही होना है। तो ध्यान रखें कि जो इंट्रोडक्शन देंगे आप बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी ऑफ 3 to 4 मिनट्स ओनली, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ओके, सो नेम दैट माई नेम इज़ दिस एंड आई बिलोंग टू दिस प्लेस, I have done my graduation. I don't speak about your 10th subjects, 10th and 12th. Okay, so just say that my last, I have done my graduation in electrical engineering from this particular college. Okay, and if you are have work experience, then say about your work experience. Okay, no need to exaggerate things about your family background and all. You can say that my father is working in this organization, and this thing, my mother is a housewife. Just short explanation, nothing more. And you would say about hobbies. What are your interests or hobbies? हॉबीज़, उन्हीं हॉबीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, आप बताएंगे जिनके बारे में आपको एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बता दिया कि मेरा हॉबी फुटबॉल खेलना है, या रीडिंग बुक्स, और बुक्स के बारे में पूछ लिया और आपको पता ही नहीं है उस पर्टिकुलर बुक के बारे में। तो ऐसा कोई आंसर ना दें आप। अबाउट टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस।
आई वुड सजेस्ट दैट डोंट टॉक अबाउट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, बिकॉज स्ट्रेंथ के बारे में पूछ लिया तो आपने बता दिया तो उनको, क्योंकि जो बैठे रहते हैं वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है हर एक फील्ड के बारे में, क्योंकि हर फील्ड के बारे में कोई ना कोई बंदा वहाँ बैठा रहेगा जो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर देगा और आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो स्ट्रेंथ बताने की जरूरत नहीं है या वीकनेस बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो पूछते हैं आपसे, इफ़ दे आस्क देन यू हैव टू आंसर, बट until they don't ask you, you don't need to speak of your own. Now let's talk about some technical questions or professional questions that can be asked in your interview. Okay friends, so for freshers, the candidates who haven't done any job, who don't have any work experience as of now, so what questions can be asked to them? Okay, so that जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाला है, जो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, जो कि ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया जहाँ से भी, तो पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक तो पता होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेट सपोज कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा सब्जेक्ट था, ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में मुझे नॉलेज होना चाहिए। मोटर क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, और फेज 3 फेज क्या होता है, 2 फेज क्या होता है, डिफरेंट जो चीज़ें होती है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो कॉमर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। बैलेंस शीट क्या होता है, मुझे कॉमर्स के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं आपको उन उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में आपको बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए, तो आपका होना चाहिए। अगर आपने फाइनेंस सेमेस्टर में कोई प्रोजेक्ट अपने किया था तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन के बारे में ही आपसे पूछा जाएगा ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि एक्सपीरियंसड है, जिन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस है, या 1 साल का एक्सपीरियंस है, या थोड़ा बहुत भी काम किया है आपने। तो दोज कैंडिडेट्स विल बी डेफिनेटली आस्क अबाउट द वर्किंग एक्सपीरियंस, दैट अबाउट देयर पार्टिकुलर इंटरव्यू कंपनी, और उस कंपनी में क्या अच्छा था, क्या बुरा था। जब भी वो आपसे नेगेटिव पूछा जाएगा आपसे आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर के बारे में, तो डोंट स्पीक एनीथिंग नेगेटिव अबाउट योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखें, आप यू वोंट से एनीथिंग नेगेटिव, वो जस्ट से कि सर आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, I wanted this government job, I wanted a bright future, तो मैं इसलिए इस इंटरव्यू में आया हूँ। तो ऐसा आप पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक आंसर देंगे, कोई भी पेसिमिस्ट आंसर नहीं देंगे जिससे उनको लगे कि यार ये अपने प्रीवियस एम्प्लॉय की बुराई कर रहा है, बिकॉज दे डोंट वांट टू हियर दैट। ओके, ऑल्सो फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट दे माइट आस्क क्वेश्चंस ऑन ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, बिकॉज जब मेरे से भी पूछा गया था इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के बारे में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड दैट व्हाई डिड यू रिज़ाइन, आपने पहले क्यों जॉब छोड़ा या जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो। ध्यान रखें, इस क्वेश्चन का एक बहुत ही सही जवाब देना है आपको कि व्हाई डिड यू रिज़ाइन। ओके फ्रेंड्स, सो और क्या ध्यान रखना है आपको, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स ध्यान रखने हैं। जो भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होंगे, आपको लास्ट 6 मंथ्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का ध्यान रखना है। कहाँ से मिलेगा आपको, स्टडी IQ में। अब वो सजेस्ट स्टडी IQ का एक यूट्यूब ऐप आता है, यूट्यूब चैनल है, वहाँ से जाएँ और स्टडी IQ के बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ वो डालते हैं। यू कैन सी द एक्सप्लेन्ड वीडियो इन देयर चैनल। ओके, ऑल्सो क्योंकि इसका जो पोस्टिंग होने वाला है वो दिल्ली में ही होगा, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि आप क्यों अपने होम स्टेट छोड़ के दिल्ली जाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक मान लिया आप यू बिलोंग टू ए साउथ स्टेट एंड यू हैव टू कम टू दिल्ली, सो बी रेडी फॉर दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो सम की पॉइंट्स टू क्रैक द इंटरव्यू। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है ऑलरेडी, तो लेट्स नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। सो डिटेल नॉलेज अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशंस, दिस ऑर्गेनाइजेशन NHB, अगर पार्टिकुलर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, मान लेते हैं अभी आप NHB में जा रहे हैं, तो नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप इसके वेबसाइट को विजिट करेंगे, विजिट इट्स वेबसाइट, एंड ऑल्सो टाइप इन गूगल दैट NHB इन न्यूज़ इन लास्ट 6 मंथ। जो लास्ट 6 मंथ में जितने बार भी NHB से रिलेटेड कोई न्यूज़ आया है, तो उन चीज़ों के बारे में आप डिटेल पढ़ के जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, जब इंटरव्यू जिस दिन जाते हैं उस दिन का द डे यू गो फॉर द इंटरव्यू, एंड लास्ट 2 डेज न्यूज़पेपर को आप ध्यान से पढ़ के जाएंगे, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट हेडलाइंस के बारे में बताएं, तो उन इंपॉर्टेंट न्यूज़ को आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। ऑल्सो गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर हॉबीज़ एंड सब्जेक्ट। ओके, सो फोर्थ पॉइंट इज हैव नॉलेज ऑफ बोथ साइड्स ऑफ ए कॉइन। लेट सपोज कोई टॉपिक है, एक पार्टिकुलर टॉपिक है, लॉकडाउन की बात करते हैं, तो लॉकडाउन के बारे में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों पता होना चाहिए। कोई भी ओपिनियन बनाने के पहले आप ध्यान रखें कि आपको बोथ उसके बारे में एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अंटिल यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट पार्टिकुलर टॉपिक, आप वहाँ पे नहीं बोलेंगे। डोंट प्रिटेंड फेक और नो ट्राई टू फेक, दे विल कैच यू। डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, दे माइट कैच यू दैट यू आर ट्राइंग टू नो प्रिटेंड देयर। ऑल्सो लेट्स सी सम मोर पॉइंट्स।
8 to 9 पीपल होंगे आपके, क्योंकि लास्ट ईयर जो हुआ था उसमें 8 to 9 पीपल से मोस्टली 5 to होने ही, मिनिमम 5 होंगे, जिसमें आपके पास 1 एक फीमेल होंगी, पैनल में एक लेडी होंगी, पक्का होना है। ऑल्सो बैकग्राउंड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेट सपोज कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार में फेमस प्लेसेस क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं बिहार में, वो पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान उस चीज़ को भी कवर करके जाएंगे। ऑल्सो इफ़ यू आर स्कोरिंग लेस इन रिटन एग्जाम, डोंट लूज होप। आपको पहले बता चुका हूँ, अगर रिटन में कम मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, वैसे तो आपको पता नहीं है अब तक मार्क्स, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मार्क्स कम आएंगे तो आपको होप लूज नहीं करना है, बिकॉज इंटरव्यू में बहुत कुछ सीन बदल जाता है वहाँ जाके। डोंट गिव इनकरेक्ट गेसेस। आपको जिन क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है उन क्वेश्चंस का इनकरेक्ट आंसर नहीं देंगे। आपको पता है तो बोलिए, नहीं पता तो सीधा बोलिए सर आई डोंट नो, सर मुझे नहीं पता इस सवाल का जवाब। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहानी बनाना है उनके सामने, कहानी बनाएंगे तो फंस जाएंगे आप, उल्टा क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपका इंटरव्यू खराब जा सकता है। इंटरव्यू जो मैं बता चुका हूँ, पेशेंस लूज नहीं करना है। कभी कभी इंटरव्यू लेंदी जा सकता है। इफ़ दे फाइंड यू इंटरेस्टिंग, द इंटरव्यू माइट गो फॉर 25 मिनट्स or 30 minutes also. Okay, don't lose hope in first 10 minutes if interview doesn't wait answer if you don't answer properly. Okay, so इसका मतलब है कि अगर आप इंटरव्यू जाते हैं, मान लेते हैं कि स्टार्टिंग के 10 मिनट में आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया, एक सवाल पूछा गया, क्वेश्चन 1 आपको आंसर नहीं पता, सर आई डोंट नो, क्वेश्चन 2 आई डोंट नो, क्वेश्चन 3 आई डोंट नो, तो ऐसा नहीं कि आपने 3 क्वेश्चन का जवाब दे दिया आई डोंट नो तो वो आपसे 4th क्वेश्चन करेंगे नहीं, दे विल कीप यू नो क्वेश्चनिंग, दे विल कीप यू क्वेश्चनिंग। ओके, सो डोंट लूज होप। ऐसा नहीं कि आपने हार मान ली है कि अब मेरे से तो नहीं होगा, अब तो मेरा 3-4 मैंने क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दे विल कीप क्वेश्चनिंग यू एंड यू हैव टू बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। तो जब ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चंस आपको नहीं पता होंगे, मान लिया कि एक पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूछ रहे हैं, आपको नहीं पता है, तो आपसे वो फिर दूसरा टॉपिक के बारे में पूछ लेंगे, आपको खुद पूछ लेंगे कि व्हाट इन विच टॉपिक यू आर कंफर्टेबल विद, तो वो आपसे पूछ लेंगे तो आप उस पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग के 10 मिनट में होप छोड़ देंगे, ये इंपॉर्टेंट बता दिया। अब एनएचबी के बारे में बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक समथिंग अबाउट एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, बिकॉज ये इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन इसके बारे में पूछेंगे, ऐसा नहीं होता है कि एनएचबी का एग्जाम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो एनएचबी के बारे में ही पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिए। कुछ पॉइंट्स आप प्रिपेयर कर लेंगे, जैसे मैं बता देता हूँ। हिस्ट्री और फॉर्मेशन ऑफ एनएचबी, कि एनएचबी का निर्माण क्यों किया गया था। ऑल्सो इट्स विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएचबी, लाइक विजन जो मैंने देखा है गूगल पे भी, वो प्रोमोटिंग इंक्लूसिव एक्सपेंशन विद स्टेबिलिटी इन हाउसिंग फाइनेंस मार्केट, तो कुछ इस तरह का है मिशन ऑब्जेक्टिव। और एनएचबी न्यूज़ जो मैंने बताया था लास्ट 6 मंथ्स में एनएचबी न्यूज़ में क्यों क्यों था, फॉर व्हाट रीजंस, तो उस चीज़ को ध्यान रख देंगे। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पे मैं एनएचबी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल शेयर कर दूंगा, तो आपको एक नॉलेज हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे आप, स्टडी लाइव 100, ठीक है दोस्तों। तो स्टडी लाइव 100 ज्वाइन कर ले, वहाँ पे मैं बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा। अभी वीडियो ऑलमोस्ट सारी पूरी वीडियो ख़त्म हो चुकी है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी थी बिकॉज ये इंटरव्यू सेशन, क्योंकि मुझे पूरा एक्सप्लेन करना था, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं जो कि सिलेक्टेड हैं, 10 से 12 लोग सिलेक्टेड हैं, तो उन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट डाली थी वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने वो वीडियो बना दी है। अभी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें दूसरे ग्रुप्स में, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको पर्सनली गाइडेंस मिलेगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे कि SBI PO, IBPS PO या एनी SSC और एनी गवर्नमेंट एग्जाम, तो आप चैनल को ज्वाइन कर ले, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।